वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् Yes. Somebody. देवाशीष. शुरू करूं महाराज जी? शुरू करूं? somebody करो. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद शूरये सुख स्वरूपाय स्वामिने तापोहारिणे. Pranam Maharaj ji. Today's is from Conversation with a Disciple, chapter 19. Swamiji is not well since his return to the mott from the Shillong hills, and he was agreed to take Ayurvedic medicine, which calls for giving up taking water and salt. The disciple asked him, "It will be unbearable for you now to stop taking water altogether for this treatment." Swamiji replied that the body is but an outer covering of the mind, and whatever the mind will dictate to it, it will have to carry out. So there is nothing to be afraid of. Swamiji cheerfully raised the topic of his future mott for women, saying, with the Holy Mother as the center of inspiration, a mott is to be established on the eastern bank of the Ganga. Yes. It declares that one and the same conscious self is present in all beings. If you do not raise the women who are the living embodiment of the Divine Mother, don't think that you have any other way to rise. In the period of degradation, when the priests made their castes incompetent for the study of the Vedas, when the priests made other castes incompetent for the study of the Vedas, they deprived the women also of all their rights. Otherwise, you will find that in Vedic or Upanishad age, Maitreya, Gargi, and other ladies had taken the places of rishis through skill in discussing about Brahman. All nations have attained greatness by paying proper respect to women. That country and that nation which do not respect women have never become great, nor will ever be in future. Manu says, where women are respected, there the gods delight, and where they are not, there all works and efforts come to naught. In Chandi, it is said that she, Divine Mother, when pleased, becomes propitious and the cause of the freedom of man. Swamiji says, on the other side of the Ganga, a big plot of land will be acquired, where unmarried girls, Brahmacharini, widows, will live. Devout married women will also be allowed to stay now and then. Men will have no concern with this mott. The elderly sadhus of the mott will manage the affairs of this mott from a distance. Those who will be able to live here permanently, renouncing home and the family ties, will be provided with food and clothing for the mott, from the mott. Those who will not be able to do what will be allowed to study in this mott as day scholars. They will be allowed to study in this mott as day scholars. The elder brahmacharinis will take charge of the training of the girl students in Brahmacharya. After 5 or 6 years training in this mott, the guardians of the girls may marry them off. If deemed fit for yoga and religious life, with the permission of the guardians, they will be allowed to stay in this mott, taking the vow of celibacy. These celibate nuns will in time be the teachers and preachers of the mott. In village and towns, they will open centers and strive for spread of female education. Spirituality, sacrifice,
and self-control will be the motto of the peoples of the mart, and service or Seva Dharma, the vow of their life. In view of such ideal lives, who will not respect and have faith in them? The life of the women of this country be molded in such fashion, then only will there be the reappearance of such ideal characters as Sita, Savitri, and Gargi. Disciple, sir, if the girl students, after being trained in this art, marry, how will one find ideal characters in them? Will it not be better if the rule is made that those who will be educated in this mart shall not marry? Swamiji, even after marriage and entering the world, the girls educated as above will inspire their husbands with noble ideals and be the mothers of heroic sons. These learned and accomplished girls will never be in want of bridegrooms. Swamiji, in the highest reality of Parabrahma, there is no distinction of sex. We notice this only in the relative plane, and the more the mind becomes introspective, the more that idea of difference vanishes. Ultimately, when this mind is wholly merged in the homogeneous and undifferentiated Brahman, such ideas as these, is a man or that, a woman, do not remain at all. Hence, if a man can be knower of Brahman, why can't a woman attain the knowledge, same knowledge? Therefore, I was saying that if even one amongst the women became a knower of Brahman, then by the radiance of her personality, thousands of women would be inspired, awakened to truth, and the great well-being of the country and society would be ensured. Swamiji, when you realize that all illuminating reality of the Atman, then you will see that this idea of sex distinction has vanished altogether. Then only will you look upon women as the veritable manifestation of Brahman. We have seen in Sri Ramakrishna how he had this idea of divine motherhood in every woman of whatever caste she might be, or whatever might be her worth. If the women are raised, then their children will, by their noble actions, glorify the name of the country. Then will culture, knowledge, power, and devotion awaken in the land. Disciple, with just a smattering or very small number of people get education, they take merely to the Western modes of living. But it is not clear how far they are advancing in the spirit of renunciation, self-control, austerity, brahmacharya, and other qualities conducive to Brahma. Swamiji, female education is to be spread with the religion as its center. All other training should be secondary to religion. Religious training, the formation of character, and observance of the vow of celibacy, this should be attended to. In this female education, which has obtained up till now in India, it is religion that has been made a secondary concern. Hence, those defects you were speaking of have crept in. In Bhagavad Gita, it is said, all works are covered with defects, as fire is with smoke. Every fire has a chance of being attended with smoke. But will you on that account sit inactive? As far as you can, you must go on doing good work. Whatever helps in the manifestation of Brahman is good work. Atman is the real nature of Jiva. And can anybody give up his own nature? If you fight with your shadow for 1,000 years, can you drive it away from you? It will always remain with you. Chapter 20. The Atman is the nearest of the near. Therefore, the careless
unsteady mind of man gets no clue of it. But the man who is alert, calm, self-restrained, and discriminating ignores the external world and diving more and more into the inner world, he realizes the glory of Atman and become great and becomes great. Then only he attains the knowledge of Atman and realizes the truth of such scriptural text as I am the Atman, award that, O Shataketu, and so on. Chapter 21. My hope of the future lies in the youth who have character, that is intelligence, renouncing all for the service of others, and obedient, who can sacrifice their lives in working out my ideas and thereby do good to themselves and the country at large. You have now to make the character of Mahavira your ideal. You have now to build your life on this great ideal of personal service. Through that, all other ideals will gradually manifest in life. Obedience to the Guru without questioning and strict observance of Brahmacharya is the secret of success. In eating, dressing, or lying, in singing or playing, in enjoyment or disease, always manifest the highest moral courage. Then only will you attain the grace of Mahashakti, the Divine Mother, Swamiji. What is the good of that spiritual practice or realization which does not benefit others, does not conduce to the well-being of people sunk in ignorance and delusion, does not help in rescuing them from the clutches of lust and wealth? Every jiva is part of yourself, which is the rational basis or the underlying reason of all work for others. As you desire the wholehearted good of your wife and children, knowing them to be your own, so when a like amount of love and attraction is for jiva will awaken in you, then I shall know that Brahman is awakening in you, not a moment before. Swamiji says, day and night, think and meditate on Brahman. Meditate with great one-pointedness of mind. And during the time of awakenness to outward life, either do some work for the sake of others or repeat in your mind, let good happen to jivas and the world. Let the mind of all flow in the direction of Brahman. Even by such continuous current of thought, the world will be benefited. Nothing good in the world becomes fruitless, be it work or thought. Your thought current will perhaps rouse the religious feelings of someone in America. Sri Ramakrishna Pranamastu. Okay. Thank Good. you. Very good. Well done. Well done. Thank you. See, Maharaj. there are three aspects of this. Very good. In first one was women education, women development. Swamiji repeatedly tells. Yes. And I may inform you that a Ramakrishna mission, similar branch is Sarda mission. Sarda Mutt has been started. A number of centers are remaining in the country and outside also, where sannyasinins are being trained. And they are also running to schools for the girls. And wherever the schools are there, of course, religious education is given more important. So Swamiji's message has somehow or the other, to some extent at least, it has been taken up. All those people in the world, you should take up these Swamiji's actions and put it into practice. And the other two, Swamiji has said, the values must be put into practice. Only reading will not do. Where reading is also helpful. If we noble think nobly, it is reasonably very good. But reading itself is not sufficient. You must plan and live the values in our life. So these are two very interesting, good lecture articles are there. We have read three.
Now, questions. First of all, Itu Ghosh, are you ready? Ji, Pranam Maharaj. Hmm. My first question is, whatever helps the manifestation of Brahman is good work. Now my question is, as I know, good work makes the heart pure and reduces our bondage. So please explain how the good work manifests Atman. Why the same thing? Chitta Shuddhi, you say already said reduces the bondage. You told her what is your written? Yes, It reduces the bondage. So yes. bondage, our Atman, there is a bondage in the Atman. Chitta Ji. Shuddhi, by Chitta Shuddhi, we a manifestation of the Brahman takes place. Very simple. The same Okay. thing. Huh? Okay. Now, my second question is, but following the path and laid down by the rishis, that knowledge of the Atman manifests quickly. So what exactly, according to Swamiji, is that path? Is it by Path of- meditating? No. Yama, Niyam, Asan, Pranayam, Pranayam. Pratyahar, Dharana, Oh. Dhyan, Samadhi. ये Oh, अष्टांग योग हुआ, ये योग का मार्ग हुआ। और ज्ञान मार्ग भी हो गया। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, षट संपत्ति, ये ज्ञान का है। सारी किताबों के अंदर ये सारे के सारे बिल्कुल रेगुलरली हैं। पंच ये अष्टांग योग पढ़ो, उसको जीवन में उतारो, और जी। ये चार साधन चतुष्टय जो है उनको जीवन में उतारो। जी भक्ति में, भक्ति मार्ग में भी वैदिक भक्ति है, तो उसमें आपको ध्यान करना, जप करना, कितना साधना करना, पूजा करना, ये सब मार्ग सब बताए गए हैं। अच्छा सभी मार्गों में बताए गए हैं। जी ये बिल्कुल क्लियर है। इसको पढ़ो, इसको जीवन में उतारो, ये जरूरी है। जी Okay, my third question is, sir, it is most tremendous statement that without the salvation of all, there shall be no salvation of all, there shall be no salvation for an individual. So is it applicable to all or only to the higher soul? ना यदि अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो उसके साथ में दूसरों का भी उन्नति करना पड़ेगा। ये तो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इज एप्लीकेशन एप्लीकेबल टू ऑल। व्हेन यू गेट सल्वेशन, एक्चुअली जब किसी व्यक्ति को साक्षात्कार होता है तो उसको लगता है कि मैं और संसार के सभी प्राणी एक हैं, और उसको ऐसा लगता है कि सभी का सल्वेशन हो गया है। और जैसे महापुरुष हैं वो कहते हैं कि मैं जब तक मेरी मुक्ति नहीं, जब तक संसार के सभी प्राणियों की मुक्ति नहीं होगी तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा। इतना उदार हृदय होता है उनका। वो संसार के सभी प्राणियों के साथ में एक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर मेरे यदि नरक में जाने से एक भी प्राणी की मुक्ति हो जाए तो मैं नरक जाने को भी तैयार हूँ। यानी अपना पूरी तरह सेक्रीफाइस करते हैं लोक कल्याण के लिए। ये हुआ, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, मींस दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबल टू ऑल। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ये सबके लिए है। जी मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अवेकनेस टू आउटवर्ड लाइफ, either do some work for the sake of others or repeat in your mind, let good happen to jivas and the world. So when we pray for the others, even for the mankind, does it really help all? Yes. अगर आप प्रार्थना करो ना प्रत्येक दिन, तुमको ये तो नियम है। यतीश्वरन जी बार बार कहते थे, उनका प्रार्थना प्रत्येक दिन संसार से अपने खुद के लिए प्रार्थना करो और संसार के सभी प्राणियों के लिए तुमको प्रार्थना करनी चाहिए। ये फंडामेंटल है। जी वो तो है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हम दूसरे के लिए भी जप करें तो अपना कल्याण होता है। अब दूसरों का होता है कि नहीं पता नहीं। दूसरों की बात, दूसरों का कब भी कल्याण होता है। अगर तुम इम्प्योर थॉट्स सोचोगे तो तुम्हारा अकल्याण होगा कि नहीं होगा? जी
अगर तुम अच्छे थॉट छोड़ोगे तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, वो तो मेरा होगा, लेकिन सबका अच्छा, भी होगा। अगर मैं बुरे विचार सोचूं तो जगत का भी बुरा होगा। अच्छा। कि तुम अब ये विचारों को एक जगत का जो वातावरण है, मानसिक वातावरण है सारे जगत में, जैसे एक आकाश है उस प्रकार हाँ। से एक मेंटल वर्ल्ड है, हाँ, एक हाँ। मेंटल यूनिवर्स है, और जब जो तुम सोचते हो वो अंदर जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग और राजयोग, उनके 2 आर्टिकल में ये चीजें हैं, कई जगह मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकूंगा। उन्होंने कहा है कि अब अगर एक पहाड़ में तुम बहुत हिमालय के एकांत गुफा में बैठकर अगर तुम निरंतर भगवान का चिंतन करो, शुभ चिंतन करो, तो उसका भी प्रभाव जगत में पड़ेगा। पहाड़ में बंद होकर भी, गुफा में बंद होकर भी अगर जी। संसार के कल्याण का चिंतन करोगे तो जी। लोगों का भला होगा, लोगों का कल्याण होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मेंटल यूनिवर्स है और इसीलिए हमें करना चाहिए। उदाहरण के लिए काशी में क्यों लोग आते हैं? कहते हैं काशी का वातावरण ऐसा है कि यहाँ काशी जो है, सभी काशी काशी की बात करते हैं। क्यों? हजारों साल से यहाँ पर लोगों ने भगवत चिंतन किया है, यहाँ पर साधना की है, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर वाइब्रेशन जो है वो भिन्न प्रकार के हो गए हैं। यहाँ आते ही हमको ऑटोमेटिकली ध्यान करना आसान हो जाता है। तो अगर काशी में हो सकता है तो ये कलकत्ता में हम क्यों ना करें? अब कलकत्ता में जो है सब विषय चर्चा होती रहती है। अगर वहां पर भी 1000, 20,000, 5,000, 50,000, 1,00,000 लोग जो है वो प्रतिदिन अगर भगवत चिंतन करते रहे तो वहां का भी वातावरण धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। बेलूर मठ का वातावरण क्यों परिवर्तित है? क्योंकि वहां पर जो है सब लोग भगवान का चिंतन करते रहे। तो इसका प्रभाव सर्वत्र होता है, सभी जगह पे होता है, ये याद रखना चाहिए। प्रणाम महाराज, मेरा खत्म हो गया। हाँ, देवाशीष। हाँ महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ। महाराज जी, पहला क्वेश्चन जो श्री रामकृष्ण के ऊपर था, वो क्या उसको छोड़ दूं ना पढ़ूं? क्या क्वेश्चन शुरू से पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो, जल्दी करो। Question 1, general question. Sri Ramakrishna always said that aim of human life is to realize God. He never spoke of education of women. We understand education must for women and also economic independence. My question is how to correlate this with Sri Ramakrishna's teaching and Swamiji's work. How to correlate it with Sri Ramakrishna's teachings and Swamiji's work. क्यों? स्वामी श्री रामकृष्ण ने क्या कहा? ईश्वर दर्शनी जीवन। अरे शिव ज्ञान है जीव सेवा किसने कहा? श्री रामकृष्ण ने कहा। नहीं, ईश्वर नहीं, सिर्फ श्री रामकृष्ण ने ईश्वर दर्शन का, शिव ज्ञान है जीव सेवा बोला कि नहीं? हाँ हाँ बोला बोला। तो फिर नहीं तो हम लोग सबके सब उल्टे हो जाएंगे। हाँ हाँ स्वामी जी को इतना जोर से उन्होंने कहा शिव ज्ञान है जीव सेवा। हाँ महाराज जी। जी महाराज। तो कि जहाँ भी सेवा हो रही है, पार्वती ज्ञान है नारी सेवा, शिव ज्ञान है जीव सेवा, पार्वती ज्ञान है नारी सेवा। हाँ जी महाराज। इसमें क्या क्या दिक्कत है आपको? हाँ, तो रामकृष्ण मिशन स्कूल कॉलेज चलाता है, विमेन एजुकेशन, तो प्रॉब्लम क्या है? जी जी महाराज जी, मैं समझ में आया महाराज। महाराज जी, ये लास्ट क्वेश्चन पहले टेकअप कर लेते हैं। हिस्ट्री 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हिस्ट्री डज नॉट टेल अस of any march of women in India in ancient times. Swamiji says, why in this country so much difference is made between men and women, whereas the Vedanta declares that one and the same conscious self is present in all beings. My question is, Shankaracharya, masterpiece in Brahmasutra Bhashya and the Bhagavad Gita, was a Noara Brahman. We compare Swami Vivekananda with Shankara in many places. As perfect Gyani, why Shankaracharya did not do what Swami Vivekananda planned for women education, which we see now as fully grown Sharada Math? The country could have been saved from degradation 1500 years ago. Shankara period 780 to 812, and the torture, humiliation, and disrespectful attitude towards the women could have been stopped. Did Shankara not see, being a prophet, what Swamiji has seen? Was he against women education?
सुनो, you try to, मैंने पहले भी कहा है कि you try to be short. You give a big lecture because asking question. You only show your ignorance. अच्छा, Now, have you read the whole history, whether there were much of and women education in old age, in ancient India, was there or not? Have you read the history? no. You are saying that. Now I tell you, Brihadaranyaka Upanishad, Maitreyi asks Yajnavalkya questions in Sanskrit. Philosophical, deep philosophical question, isn't it? Is it there or not? Yes. I've read it. Yes. Then Maitreyi was a learned Sanskrit scholar. हाँ. From Maharaj, where did she get Maharaj, education of Sanskrit? Maharaj, that was before Gargi. Shankara. That was before Gargi. Shankara. That was Gargi. before Shankara. Maharaj, that was Gargi. Gargi. That is what I say. That is what I say. Before Yes. Shankara. हाँ. So But before did Shankara, after that, what happened? No, that means that even before the time of Shankara, the education of women was there. yes. After that, it was only during the Mughal period when women had to be protected. Women had no education. Women should not go to the school. It was an unfortunate thing because of the Muslim rule. All were kept inside, no education, not to go anywhere. So this was what it is actually. Maharajji, Shankara was before Mughal. Shankara was before Mughal, na? That's what I say. That But time उस it समय- was So during that time, Shankara, the education was there. Oh, अच्छा. So why should Shankara do it? Maharaj, Huh? the Shankaracharya did Tarka with Mandan Mishra's wife also. She was also So- highly Yes. educated. Yes. Yes, Maharaj, yes. That Okay. मंडन जी, विश्व महाराज। आ गया तो मंडन विश्व की भाई आपके उसने डिस्कस किया. Correct. So Such a how- great education of the women was there. अच्छा. Okay, Maharaj. Ji Maharaj. Ji Maharaj. Second question. Ultimately, when the mind is wholly merged in the homogeneous and undifferentiated Brahman, such ideas as this is a man or that a woman do not remain at all. What is that? The mind is wholly merged in the homogeneous and undifferentiated Brahman. Please एक explain. ड्रॉप जो है समुद्र में मिल गई. जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा तो एक आप आत्मा जो है वो परमात्मा के विलीन हो जाएगा. निर्विकल्प समाधि कुछ पता नहीं चलेगा. जी महाराज जी. उसमें क्या है क्वेश्चन? ओहो अच्छा, समझ में आया महाराज जी. थैंक यू महाराज जी. And third one, that all work is the effect of may be true from the absolute standpoint, but within the sphere of relative consciousness, it is a great utility. What is the sphere of relative consciousness? रिलेटिव कॉन्शियसनेस, ये जगत, ये जो संसार दिखाई दे रहा है ना, हाँ. ये है रिलेटिव कॉन्शियसनेस. ओके. यहाँ के दो चीज दिखाई दे रही है. मैं अलग दिख रहा हूँ, तुम अलग दिख रहे हो. ये द्वैत सत्य प्रतीत हो रहा है. ये है रिलेटिव कॉन्शियसनेस. ठीक है जी महाराज जी. जी महाराज समझ में आया जी महाराज जी. एकात्म बोध नहीं हुआ अभी तक. समझ में आया. Page now question number 4. According, this is the last question. According to Vedanta, the state of individualized existence is the root of bondage, and the infinite intelligence through desires and effects of works appears bound in that limiting condition. My question is, what is the infinite intelligence through desires and effects of work appear bound in that limiting condition? ना ब्रह्म है. ब्रह्म जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है. अज्ञान के कारण वो बंधा हुआ दिखाई देता है. हम जो है वो आत्म स्वरूप है, लेकिन हम अपने आप को देह समूह समझते हैं. तो प्रश्न क्या उठता है? अच्छा जी महाराज जी. जी महाराज समझ में आया. जी महाराज. थैंक यू महाराज जी. प्रणाम महाराज जी. अच्छा, अब किसका क्वेश्चन लेना है? कुंडू पहले लेंगे क्या? हाँ चलो, तुम्हारे छोटे का कम वो है. उसके बाद में दिलीप भाई के लंबे आएंगे बहुत सारे.
Page 219, Maharaj. According to Swamiji, good work is whatever helps the manifestation of good work. तो गुड वर्क नहीं, मैनिफेस्टेशन ऑफ No, ब्रह्मन। Atman, Atman. हाँ, आत्मा। But in वहाँ प्रिंटिंग में Shastras, प्रॉब्लम हुई है। हाँ। हाँ, Maharaj. But in Shastras, digging ponds or making schools are also called Kamya Karma. Even here, Swamiji praises the efforts of social reformers in spreading women education. How does the Atman manifest itself through such secular work? नहीं नहीं, सेक्युलर देखो, शास्त्रों में कई प्रकार के कर्म बताए हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, जैसे जैसे स्थिति है उस प्रकार के कर्म की बात कही गई है। और फिर निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्म नहीं करना है, और नित्य कर्म करना है। नैमित्तिक कर्म यानी विशेष एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, नवरात्र के दिन, ये अलग कर्म है। और प्रारब्ध कर्म करना है। ये प्रारब्ध कर्म की बात जो प्रारब्ध के कारण होते हैं। लेकिन इन सब के साथ में ये सब के अगर स्वार्थ के लिए किएंगे, मैं ये करूंगा और उससे स्वर्ग में जाऊंगा, तो ये हुए निष्काम कर्म नहीं है, सकाम कर्म हुए। सकाम कर्म बंधन में डालते हैं, निष्काम कर्म मुक्त करते हैं। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है और उसके बाद में निष्काम कर्म से मुक्ति होती है। ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं, तो इसके मतलब जो कर्म तो एक ही हुआ, जो कर्म कर रहे हैं, बट एटीट्यूड, मैं किस एटीट्यूड से कर्म कर रहा हूँ उसी में ये डिपेंड करता है कि ये बंधन करेगा या मुक्त। आपने सकाम कर्म कर रहे हैं तो आप बंधन में पड़ेंगे। बिल्कुल सीधा एटीट्यूड से निष्काम कर्म करने चित्त शुद्धि होगी और उसके बाद में ज्ञान की प्राप्त, ज्ञान के अधिकारी होंगे, आप गुरु के पास में जाएंगे। ये सारी प्रोसेस ज्ञान मार्ग में अच्छी तरह बताई गई है। तो इसमें प्रश्न क्या है आपका? अर्जुन ने स्वधर्म किया था, निष्काम कर्म किया था, फाइटिंग किया था। भगवान ने उसको कहा था युद्ध करो, वो कहता अरे बाप रे भयानक है, नहीं युद्ध करो, तुम्हारा धर्म है। उससे चित्त शुद्धि होगी और उसमें ज्ञान का भी उपदेश दिया अर्जुन को गीता में। तो इसलिए यानी वो चित्त शुद्धि के बाद में ज्ञान के हम अधिकारी बनते हैं। कहीं पे तो यहाँ तक लिखा गया है कि गुरु का नहीं हो तो भी अगर पूरा निष्काम भाव से अच्छी तरह किया जाए तो स्वाभाविक रूप से चित्त ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अच्छा ठीक इज दैट ओके? महाराज जी ये 3 कर्म बताए आपने, नित्य, नैमित्य और प्रायश्चित वगैरह, तो ये सारे काम मतलब निष्काम करना है, मतलब बेसिकली सारे निष्काम करना है, सारों को निष्काम करना। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज, दैट्स ऑल कैटेगरी। जी जी। तो इसके मतलब महाराज जैसे इष्ट पूर्ति बोलते हैं, पहले कुएं खोदते थे, रास्ता बनाते थे, तो ये सब जो है अगर नेम फेम के लिए किया तो वो नहीं होगा, वो बंधन का पड़े। अच्छा महाराज, यस महाराज, अंडरस्टैंड। देन पेज 224 महाराज, Swamiji says sorrow is helpful to the knowledge of the Atman, but Thakur says that people don't attain dispassion from sorrow. Every year a child dies and every year people beget children. Buddha and Mahavira also did not seek knowledge due to any personal loss. My question is, does detachment come from personal grief or sorrow? ना, ये डिस्क्रिमिनेशन से ही डिटैचमेंट आता है। कोई व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आवे, उसने दूसरे के व्यक्ति को, दूसरे के संसार को देखा। हम साधु बन गए, हमने तो विवाह करके सारा अनुभव नहीं किया, दूसरों को देख के समझ गए अरे बाप रे इतना सब कष्ट होता है संसार में, बचो। विवेक करके, विवेक के बाद डिस्क्रिमिनेशन, ये वैराग्य होता है, डिस्क्रिमिनेशन से होता है, उसके बिना चाहे कितना भी जीवन में दुख नहीं होता। स्वामी जी ने यहाँ बोला है, ये मान कर चला है कि सौरव से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं होता, डिटैचमेंट नहीं होता है संसार में। बिल्कुल क्लियर बात तुमने कहा, ठीक बात है।
ये हर साल बच्चा मरता जाता है, हर साल बच्चा पैदा होता जाता है, क्यों? विवेक नहीं है। और जो महाराज विवेक है उसको बच्चा पैदा के चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे का बच्चा मरता है, देख लेता है और समझ जाता है बाबा बच्चा, हम मेरे को अपने बच्चे को नहीं मरवा। महाराज सौरों से मरकट वैराग्य होता है ना? और क्षण भर में होता है, वो भी विचार थोड़ा सा हुआ ना। ठीक। यदि जी विचार महाराज। पूरा होगा तो फिर हो ही जाएगा। जी जी। मरकट वैराग्य की भी तो कोई आवश्यकता नहीं। सौरों से विचार के द्वारा, बिना उसके नहीं होगा। ठीक महाराज, विवेक होना ही चाहिए। ठीक। ओके, यस महाराज, प्रणाम महाराज। दिलीप भाई आ जाओ। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। पहला सवाल मेरा, माय फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामी जी, व्हाट डू यू से आई शैल मेक अ फर्म रिजॉल्व ऑन द मॉर्निंग ऑफ द डे आई शैल बिगिन दिस ट्रीटमेंट नॉट टू टेक एनी वाटर? डज इट मीन इज इट ए हठ योग और अ विल पावर? विल पावर। अच्छा, अब हठयोग में भी विल पावर होता है। So- हठयोग में भी यानी विल हाँ। पावर सबके पीछे लगा रहता है। बल, इच्छा शक्ति का बल तो होना ही चाहिए ना, बिना उसके हठयोग भी नहीं हो सकता। संसार में कोई काम नहीं हो सकता इसके कारण। जी, राइट। अब मैं निर्णय कर लूं कि मैं फलाना साल भर तक मैं रेगुलरली इस प्रकार का कह दूंगा, मैं बैठूंगा रोज 1 घंटे या आधा घंटे बैठूंगा, संकल्प करके बैठूं, तो तुम कहोगे कि भाई ये तो बैठ रहे हो तो विल हठयोग कर रहे हो। हठयोग में करूं या वो करूं, विल पावर तो सब जगह चाहिए। राइट जी महाराज जी, थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल है, नाउ बाय योर सपोर्टिंग द वर्शिप ऑफ ए वुमन एज taught in the tantras, you are contradicting yourselves. What is the taught in the tantras? Worship of women as God, goddess. Now by you're supporting the worship of woman as taught in the tantras. Tantras में क्या बताया? तंत्र में ये कहता है, तंत्र में कहा गया है कि अपनी पत्नी की एक देवी के रूप में पूजा करो। ये आपको दूसरी जगह थोड़ी मिलेगा। दूसरे शास्त्र में कहाँ लिखा है? ये तंत्र में लिखा जाता है कि अपनी पत्नी की देवी के रूप में पूजा करनी चाहिए। ओके, ठीक है जी। हाँ भाई। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि तंत्र, टीचिंग ऑफ तंत्र गिव्स इविल इफेक्ट एंड गुड इफेक्ट बोथ? नहीं, इविल इफेक्ट का कैसा है कि हमारी जैसे बुरी आदतें हैं, देखो तंत्र के बारे में कुछ पता है, बुरी आदतें हैं जी। क्या है? शराब पीने की इच्छा है ना जी। अब क्या करेंगे? तो कहने उन्होंने पूजा किया, माँ काली को शराब चढ़ा के उसके बाद पियो। मैं छोड़ तो नहीं पा रहा हूँ, तो क्या माँ काली को पूजा करके दो। तो क्या हुआ? धीरे धीरे माँ काली का भाव आएगा और शराब का भाव कम हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है। यानी सारी यानी आप भोग की वृत्ति भी है तो उसमें भी उसको वो पूजा के रूप में करके धीरे धीरे उसके ऊपर चले। ये है बेसिकली तंत्र का एक उदाहरण दृष्टांत। देखा कि वैदिक इतना संयम तो हो नहीं पाता है, भोग की इच्छा है तो ठीक है भोग करो, लेकिन माँ काली को अर्पित करके करो। जी जी। ये इसका नाम क्या है? क्या बोला? तंत्र। तंत्र। चलो तीसरा क्वेश्चन। My third question, my woman disciples will lay down their lives for it. Was there so much opposition for the woman worship and opening of a separate month for women? क्या समझा नहीं, क्या बोला? महाराज जी ये इन्होंने लिया है, my woman disciples will lay down their lives for it. स्वामी जी कहते हैं यदि मठ खोला गया और उसमें ऑब्जेक्शन हुआ तो मेरा सवाल ये है कि वहां पे वुमन को वर्शिप करने के लिए इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन थे क्या उस समय? नहीं उस समय थे, उस समय थे। हाँ
the ladies were not supposed to pray God. अरे लेडीज कमरे में करो, यानी ये सन्यासी की बात कर रहे हैं, मठ की बात है ना जी क्या है, पूरा पैसेज पढ़ो ना। महाराज जी, मैं पूरा छोटा पैसेज पढ़ लूं क्या? No great work has been done in the world without sacrifice. Who, on seeing the tiny sprout of the banyan can imagine that in course of time it will develop into a gigantic banyan tree. At present, I shall start the mud in this way. Later on, you will see that after a generation or two, people of this country will appreciate the mud of this mud. That's यहाँ तक तो बराबर आगे आया है. My woman disciples will lay down their lives for it. Casting off fear and cowardice. You are also be helpers in this noble mission and hold this high ideal before all. You will see it will shed its luster over the whole country in time. नहीं तो इसमें यहाँ तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि ऑपोजिशन की बात तो कहीं लिखी नहीं है स्वामी जी। नहीं, पर ये जो एक सेंटेंस है, My woman disciples will lay down their lives for it. Lay down lives का क्या कि वो यानी वो अपने ये वुमेन डिसाइपल जो मठ शुरू करेंगे उसके लिए अपना जान तक दे देंगे। इसमें क्या बात है, कोई मरने की बात नहीं है, यानी अपना मन प्राण लगा के उस संघ उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। जी ओके, एक मिनट सर। They will do it with full dedication. Here it is a dedication or a right to struggle? No, dedication. They will spend their whole life towards this ideal only. But when there is a agitation, so they will. नहीं, लड़ाई की बात नहीं हो रहा है. This is simple that they will dedicate their life towards this cause. वो बंगाली में है. बोलो. Yes, sir. Next question. So long as the students will remain in the association with this mart, they must observe one brahmacharya as the basic ideal of this mart. Because they are talking of the students, my question is, here brahmacharya means the physical brahmacharya or also spiritual to practice, or even for the Patanjal's 8 sutras of yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar. सब यम नियम प्राणायाम सत्याग्रह के बाद में ही तो ब्रह्मचर्य होता है, बिना उसके कैसे होगा? केवल खाओगे पियोगे मजा करोगे सोओगे और ब्रह्मचर्य पालन होता है क्या? ब्रह्मचर्य का अर्थ ही होता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ भी होता है कि सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, खाने को कंट्रोल करना है, सुबह बराबर 4 बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब ब्रह्मचर्य का अर्थ है। बना है हमारे रामकृष्ण मिशन में हम लोगों को 9 साल तक ब्रह्मचर्य और के बाद में संन्यास दीक्षा दी जाती है, और ब्रह्मचर्य दीक्षा होती है 5 साल। 5 साल तक पहले करने के बाद में देखा कि ठीक ठीक रह रहा है, सुबह बराबर उठता है, यानी 15-20 यानी 15-16 नियम है वहां पे हमारे। खाने के बारे में नियम है, उठने के बारे में, ध्यान के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। ये नियम जब हम पालन करेंगे तब देखेंगे कि हाँ इसने 5 साल तक ये नियम पालन किया है, अब इसको ऑफिशियली ब्रह्मचर्य दे दिया जाए। ब्रह्मचारी मोक्ष चैतन्य करते हो, ब्रह्मचारी ज्ञान चैतन्य कर दो, उसका नाम दे दे के उसके करते हैं। उसके बाद में फिर 4 साल तक और इस प्रकार का रहो, उसके बाद 9 साल के बाद संन्यास होता है। मतलब यह है कि तुम्हारा सारा जीवन संयत हो जाएगा। ये एक ब्रह्मचर्य का क्या मतलब? जी हाँ। Next question: to what straits the strictures of local usages have reduced the women of this country, rendering them lifeless and inert? You could understand if only you visited the Western countries. Now my question is, what Swamiji saw in Western countries about women, and he wanted to bring all the cultures in India. What was the visualizations of the woman in India? The same he saw in Western countries. अरे स्वामी जी को ये अमेरिका में लेडीज जो है ना, वो शॉप में ले जाती थी,
उनको दूसरा सारा काम कराती थी, उनको समझाती थी, सिखाती थी। अमेरिका में सब काम जो है लेडीज करती हैं। बराबर। तो फिर तो यहाँ इंडिया में कुछ नहीं करती, बस खाना बनाती है और कुछ नहीं करती, झाड़ू लगाती है घर में, ऑफिस में काम करती हैं, अकाउंट्स करती हैं, लोगों को गाइड करती हैं। स्वामी जी को उन्होंने बच्चे जैसा ठीक किया, बच्चे से संभाला था, याद है? पता ही नहीं तुमको? नहीं महाराज जी, ये मेरा सवाल ये नहीं है, दिस इज परफेक्टली राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज हियर समथिंग वेरी डिफरेंट, कि इसके बाद ये जो स्वामी जी ने लिखा है बड़ा आदर्श पिक्चर उनके साथ था और हुआ, लेकिन वही लेडीज के आज की जनरेशन के अंदर कितनी गलत जगह पे ये लेडीज गई है बिकॉज ऑफ दैट। जो आज स्वामी जी नहीं, ये जो मेरा सवाल इसलिए ये था कि स्वामी जी ने ये विजुअलाइजेशन नहीं हो पाया था क्या उनमें, कि ये इतनी अच्छी लेडीज 18वीं शताब्दी की, ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये स्थिति आई। किया तो अब क्या करोगे उसको? पता है, यानी स्वामी जी कहते थे कि इतना सब करती है लेकिन इतनी पवित्र है कि बस। हाँ, उस समय इतनी पवित्र नारियां थी, सारा काम बाहर संसार का काम करती थी, मिलते जुलते थे, लेकिन पवित्र थी। अब वो उनका डिग्रेडेशन हो गया तो क्या करेंगे स्वामी जी, बोलो? नहीं, परंतु यदि हम वही लेडीज का वही तरीके से यदि वेस्टर्न में इन्होंने जो हमें ये है ना, हमारे आदर्श को और उनके आदर्श दोनों को मिलाना पड़ेगा। ओके जी, दैट्स परफेक्ट जी महाराज जी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, all other training should be secondary to religion. Religious training, the formation of character and observation of the vow of celibacy. Why Swamiji says so for female education? Has Swamiji anytime anywhere spoken about men education also? ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हे भगवान, कुछ नहीं मालूम। स्वामी जी का सारा लिटरेचर एजुकेशन ही भरा हुआ है। और ब्रह्मेशानंद का एक आर्टिकल है, मैन मैचिंग एजुकेशन, तुम पढ़ा ही नहीं कुछ भी। अरे ब्रह्मेशानंद का आर्टिकल पढ़ लो, स्वामी जी का आर्टिकल नहीं पढ़ा तो क्या हुआ जी? स्वामी जी ने एजुकेशन है, सारे लिटरेचर पे जो एजुकेशन के सिवा कुछ बोलते नहीं है। Okay. Now my next question, but following the path laid down by the rishis, the knowledge of the Atman manifests quickly. On the contrary, the doing of works which have been indicated by the scriptural and writers as wrong brings only bondage of the soul, and sometimes this bondage of delusion does not vanish in my life. Please explain this paragraph. क्या कहा स्वामी जी ने? ऐसा है कि जहाँ पे शास्त्रकारों ने सावधान किया है कि ये मत करना, ये गलत काम है, उसको करोगे तो बुरा होगा, यही बात अर्थ है और कुछ नहीं है। ये जो आखिरी लाइन है इसकी, and writer says wrong brings only bondage of the soul, and sometimes this bondage of delusion does not vanish in my life. Yes. यानी जो राइटर ने, शास्त्र के राइटर्स ने कहा है कि ये गलत चीज है, उसको अगर तुम करोगे तो तुमको बॉन्डेज होगा, तुम संसार के बंधन में फंस जाओगे, क्योंकि उन्होंने कहा इसको मत करो और फिर भी तुम कर रहे हो। Yes, right, Maharaj. Next, have no fear, my son. You are not like ordinary worldly men, neither householders nor exactly sannyasi, but quite a new type. तुम जो हो तो तुम क्या हो कि सन्यासी भी हो, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी की तरह हो, तुम ऐसी अच्छी बातें करते हो। तुम्हारा मन इतना ऊंचा है, तुम गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हो, दोनों हो, उच्चतर सन्यासी भी हो। ये क्या बात? जी महाराज। Why Swamiji was strongly against playing in khol and kartal and dancing in the frenzy of kirtan has degenerated the whole people. How the kirtan degenerated the people? हाँ, वो कीर्तन जो है ना, ये फेमिनिन कीर्तन हुआ करता था, औरतों जैसा कीर्तन।
स्वामी जी औरतों जैसा कीर्तन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे डमरू होवे खो और वो होंगे नगाड़े होवे, डमरू नगाड़े होकर और शिव जी जैसा कीर्तन होना, नृत्य होना चाहिए। अच्छा जी। यानी औरतें भी तो नाचती है ना, हाँ वो हाँ औरतों का नाच नहीं चाहते थे वो। जी, राइट। एंड नेक्स्ट, thou the thunder, roll of the dignified Vedic hymns. Life is to be brought back into the countries. What are the dignified Vedic hymns? ये गायत्री मंत्र है, उपनिषदों का पाठ है। हम लोग रोज सुबह यहाँ पे पढ़ते हैं, रोज 15 मिनट तक हमारे यहाँ पे चैंटिंग होता है रामकृष्ण मिशन पे सब जगह। तो ये जो है ये उपनिषद, गायत्री, गीता, इसमें जरा पावर है, ब्रह्मसूत्र इनमें पावर है। ये संस्कृत भी कठिन है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और उस जोर से उसका चैंटिंग होता है, वो ताल के साथ होता है। ये चैंटिंग जो है ये स्वामी जी चाहते थे कि इनका प्रचार होवे, तो सुबह सुबह व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, 15 मिनट तक है पावर को करे तो उसको स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, my last question, Maharaj. Without the salvation of all, there shall be no salvation for an individual. It means that the complete world should experience in Brahman. Is it possible? If yes, then on that day the world will be vanished. Is it so? तो तुम इतना क्यों घबरा रहे हो कि दुनिया का खत्म हो जाएगी? अरे छुट्टी हो जाए, घबरा नहीं रहे हम तो, कह रहे हो जाए तो हम भी हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए। चलो महाराज प्रणाम। अच्छा अच्छा, अब किसका है? सुबीर मजूमदार। सुबीर। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ अभी बोलता हूँ महाराज Maharaj ji, first question is from the first chapter, which is about ideas of establishing the Sharada Math as expressed by Swamiji. My question is, what makes Sharada Math unique compared to earlier women's math or convent? Why, I don't know. Acha. I can't tell you about it. And why do you worry about it? It is an irrelevant question so far as we are concerned. हाँ नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने जैसे अभी दिलीप शाह बोल रहे थे कि उन्होंने वेस्ट में भी कुछ देखा होगा, और पास्ट में आज 2500 साल पहले भी बुद्धिस्ट नन्स होते थे, तो उसके सारी उन्होंने उस चीज के बाद ही आइडिया निकाला होगा कि ऐसा है कि वो क्या आइडिया होंगे, वो हिंदू मठ से क्या लिया है, बुद्धिस्ट मत से क्या लिया गया है, ये करना बड़ा मुश्किल है। महाराज, can I tell you? हाँ हाँ, बोलो बोलो। First is the purity is much more than any other churches, and second is the no male interference is there in their administration. अच्छा अच्छा, हाँ महाराज, these are good points महाराज जी। Good points, good points. Okay. इसमें लिखा है कि no man administration। जी जी, ये आर्टिकल में लिखा है कि मैन का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा शारदा मठ में। हाँ हाँ हाँ, आर्टिकल में लिखा हुआ। ठीक है महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज 220, लास्ट पैराग्राफ। ये सवाल का उत्तर हो गया महाराज जी, वो डिस्कशन हो गया है। स्वामी डिसाइपल को बताया था ना कि यू आर न्यू टाइप, को आपने बता दिया। ठीक है। तीसरा सवाल महाराज जी पेज 225 में, चैप्टर 20 में है, सेकंड पैराग्राफ। स्वामी जी seems to describe man's intoxication as hallucinations. Yes. My question is, why has the state of man been described as intoxication and other places and scriptures as bhavaroga or the delirium of a typhoid patient? उसको ये टर्मिनोलॉजीज क्यों दी जाती महाराज? अब ये टर्मिनोलॉजी ये क्या है, ये है ना मिथ्या बोलते हैं ना, हिंदी में संस्कृत में मिथ्या है। अच्छा, भ्रमित हो गया है व्यक्ति, भ्रम में पड़ गया है, ये बोलते हैं। अब इसको कैसे ट्रांसलेशन करोगे? अच्छा, तो उसी को इंटॉक्सिकेशन इंग्लिश का कार है, या है भवरोग बोलते हैं,
जी जी बीमारी है ये। हम अच्छे थे सबसे पहले, लेकिन जी मन में बीमारी हो गई। अब मेंटल डिजीजेस तो सब जानते हैं, जी यानी कई प्रकार की मेंटल डिजीजेस होती हैं। अब जी ये संसार आध्यात्मिक दृष्टि से ये संसार में फंसना, जगत को सत्य मानना, ये एक बीमारी हो गई है। जी तो ये दैट हाँ इज द थिंग। रोग बना बोल दिया उसको, भ्रम बना दिया। भ्रम बोला तो ये इंटॉक्सिकेशन समझ लो, जी जी हेलुसिनेशन हो गया है। ओके हाँ, ओके मैं भ्रमित हो गया हूँ, संसार को सत्य समझ रहा हूँ, ये बोल रहे। जी महाराज जी। Next question, Maharaj ji. It is undoubted that one feels energized and motivated after reading Swamiji. Now, how to maintain this state continuously in our spiritual life? अरे रोज पढ़ो, Read daily. वचनामृत रोज पढ़ते हैं, ढीला ढीला। हाँ, स्वामी जी को रोज पढ़ो। जी जी रोज Continuously. हम तो अभी पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं स्वामी जी। जी दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। रोज दो that चार पेज कोई सी भी किताब पढ़ो स्वामी जी। जी that is the answer. स्वामी शिष्य संवाद है, लेक्चर्स ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा है, कर्मयोग जी है, जी राजयोग है। जी जी स्वामी जी जी एवरीवेयर, सही पे वहां पे वो पॉजिटिव है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विचार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग रोज वचनामृत पढ़ते हैं उसी तरह से हाँ 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 read हाँ, Swami ji every day. एवरी डे। That's the answer. महाराज एक पर्सनल क्वेश्चन था हमारा कि आपको, आपने तो इतना कंप्लीट वर्स पढ़ा, पर कौन सा पोर्शन आपको सबसे मोटिवेट किया? Yes, मेरे को very, बड़ा मुश्किल है कहना। very good question. पहले मेरे कमरे में मेरे को किताब मिली थी, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, किसी की पढ़ी हुई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जब शुरू में कर्मयोग पढ़ने लगा तो पढ़ता ही चला गया, छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, फिर हमारा आश्रम शुरू हुआ, तो रोज हम 3-4 लड़के हम रहते थे। मैं घर में रहता था, रोज खाना खाने के बाद जाता था 9 बजे, और हम लोग जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पढ़ते थे। मैं ही पढ़ता था, और लोग पढ़ते ऐसा जोश आ जाता था, बाप रे, यानी शरीर गर्म हो जाता था 15-20 मिनट पढ़ते। Yes, तो Maharaj. लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, क्वेश्चन, लेटर्स, ये सब अब क्या बताऊं, जो पढ़ता था वो सब अच्छा लगता था मेरे को समझ का। महाराज हम लोग को तो यही जो आर्टिकल अभी पढ़ रहे उसी से जोश आ रहा है। तब स्वामी जी को पढ़ना यानी जोश आना, और कुछ नहीं है। जी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पढ़ते रहना बस। हाँ, जी महाराज। लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, पेज 232 चैप्टर 21 में स्वामी जी स्पीक्स ऑफ द अवेकनिंग ऑफ द ब्रह्मन। व्हाट आर द साइंस ऑफ द अवेकनिंग ऑफ ब्रह्मन? स्थित प्रज्ञ दर्शन। नहीं, अवेकनिंग महाराज जी, वो तो अवेकनिंग वही स्थित प्रज्ञ। अच्छा, स्थित प्रज्ञ। हाँ, मतलब वो तो एक स्थिति हो गई ना महाराज, वो तो वो अवेकनिंग तो हो चुका है। और क्या है, उसको थोड़ा सा स्थिति को आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर लो, और क्या। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके, गॉट इट। दैट्स ऑल महाराज। हाँ, सतीश, प्रणाम महाराज। नमस्ते भाई। प्रणाम महाराज। आओ भाई। प्रणाम महाराज। हाँ, First question, Maharaj. Reading from scriptures or hearing from the lips of the preceptor, one has some idea of it. But when the hard lashes of the bitter sorrow and pain of the world make the heart sore, when on the death of one's near and dear relatives, man thinks himself helpless, when the impenetrable and insurmountable darkness about the future life agitates his mind, then does the jiva pant for a realization of the Atma. Therefore is sorrow helpful to the knowledge of the Atma, but one should remember the bitter lesson of experience. Maharaj, my question is, doesn't remembering the bitter lesson of experience makes the man bitter and unfit for bhakti and love? ऐसा है कि अगर विवेक होगा, मोर इम्पोर्टेंट इज डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। केवल बिटर एक्सपीरियंस से नहीं होगा। जी जी जी, उसके साथ में विवेक होना चाहिए कि भाई ये बिटर एक्सपीरियंस है, संसार का यही अर्थ यही है। ऐसा करोगे ना तो ठीक रहेगा। बल्कि उससे ये होगा कि जब बिटर एक्सपीरियंस आएगा तो तुम्हारे मन में ये भी लगेगा
कि अरे भाई दूसरे संसार, मेरे जीवन में बिटर एक्सपीरियंस है, तो दूसरे लोग भी तो बेचारे संसार में कितना कष्ट पा रहे हैं, उनको दूर करने का मैं प्रयत्न करूं। तो बिना डिस्क्रिमिनेशन के, विवेक के कुछ भी काम नहीं आता। उससे वैराग्य होगा और उसके बाद में भक्ति में मदद करेगा, सब कुछ करेगा। यानी बिटर एक्सपीरियंस से क्या है कि राइट बिल्कुल सही। सुनो, बिटर एक्सपीरियंस से क्या होता है एडवांटेज, ये संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, वो नष्ट हो जाती है, संसार के प्रति प्रेम नष्ट हो जाता है, और उसके बाद में भगवान की ओर मन मुड़ जाता है। राइट जी महाराज। चलो, one should always oneself, this world is a bitter experience. Maharaj, next question, same paragraph mein, Swami says, the man who is alert, calm, self-sustained and discriminating, ignores the external world and diving more and more into the inner world, realizes the glory of Atma and becomes great. Maharaj, how the householder can ignore the external world while living in it and become passionately devoted to Atma, diving more and more into the inner world. ये तुम डायरेक्ट डिसाइपल्स की, अपने ये गृहस्थ भक्तों की किताबें जीवनी नहीं पढ़ी तुमने? नाग महाशय, साधु नाग महाशय संसार में रहते थे। ठाकुर ने कहा था कि संसार में, वो तो साधु बनना चाहते थे, उनको संसार में रखा था, वो सारा काम करते थे, लेकिन कितने डिटेल्स थे भाई, कितने डिटेल्स थे। नाग महाशय को पढ़ो, उसके बाद श्री मास्टर महाशय की जीवनी पढ़ो। गिरीश चंद्र घोष जो है वो तो शराबी थे, लेकिन कितना बदल गए, वो संसार में ही रहे थे। ऐसा करो तो पता चलता है कि वे लोग जो हैं वो कितना भगवान के में एकाग्र रहते। और याद रखो, भगवान ने क्लियरली कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आप अनन्य भक्त हैं, भगवान का प्रेम करेंगे, तो संसार जो है, भगवान जो है वो तुम्हारा काम करेंगे। ऐसी कहानियां हैं, वो कहानियां हैं, सत्य है कि नहीं, कि इतना भगवान के भजन में भक्त है, वो पता ही नहीं खाने का घर में है कि नहीं, तो भगवान खुद लेके उसके पास पहुंच जाते हैं। किसी की कहानी है, याद नहीं आ रही मेरी, तो वो अकेला जाके ध्यान, महाराज नरसिंह मेहता, हाँ नरसिंह मेहता, वो चले गए, दिन भर भजन वजन कर रहे हैं, घर पे आए तो उनकी पत्नी ने कहा खाने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि 7 दिन बाद वो मिलेगा, उन्हें तनख्वाह मिलेगी। और 7 दिन फिर भजन करने में लगे। फिर सोचा अब घर जाके क्या बोलूंगा, तो जब घर जाके पहुंचे तो वहां पे पकवान की गंध आ रही थी, तो कहा है कि वो तो आ गया, कोई आदमी आया, उसने सब ये खाना वाना दे दिया है, उसने कहा है कि उनको बोलो कि पूरी पूजा करते रहे, उस और भी मैं तुमको दूंगा। तो भाई ऐसी भी घटनाएं हैं, कहानियां हैं, विश्वास करो तो ठीक है, और नहीं विश्वास करो तो जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे। तुम्हारा प्रश्न वही रहेगा, संसार के प्रति तुम्हारा आसक्ति बनी रहेगी और धर्म के प्रति अविश्वास बना रहेगा। जी एक्सटर्नल वर्ड को इग्नोर ही करना पड़ेगा और इनर वर्ड में ड्राइविंग मोर भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए बाबा, मन रखना चाहिए। अभी संसार इतना खींच रहा है, क्या करेंगे? ठीक महाराज, ठीक महाराज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। Disciple quoted Sri Ramakrishna, without the badge of authority, none will listen to you. Maharaj, I couldn't understand what was Swami's answer to this query of the disciple. क्या बोला Swami? Without the badge of authority, none will listen to you. Can one still do good to others even if has not got the badge of authority? Yes. कोई नहीं सुने। अरे हमको कोई अथॉरिटी नहीं मिल रही, कि इतने लोग तो सुन रहे हैं। तो है हमको तो कोई अथॉरिटी नहीं मिली, भगवान ने कहा नहीं अथॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन कितने लोग तो सुन रहे हैं भाई। गेरुआ महाराज जी, आपका ओकर क्लॉथ।
हमारे लिए तो महाराज आपको तो थॉट ही है, हमें चलो हम बक बक करते हैं। चलो आगे चलो, आगे चलो। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, last question. He for whom the idea of the jiva and the world is persisting reality may think that without the liberation of all, he has no liberation. But the disciple says that when the mind becomes benefit of all limiting adjuncts and is merged in Brahman, where is there any differentiation for him? My question is, on coming to the ordinary plane, will his mind still be not agitated on seeing the boundaries of others? Do not Yes, have yes. the wishes. यस यस, जो लोग स्वामी जी तो उच्च कोटि पे जाके जब आके नीचे आए तो देखा कि गरीब सफरिंग है, जी जी तो उन्होंने कहा कि सफरिंग पीपल आर आल्सो गॉड, और उनकी सेवा करो। माय गॉड द पुअर, माय गॉड द मिजरेबल, एंड सर्व देम। जी जी, एट द टाइम दे आल्सो फील राइट ऑल इज ब्रह्मन। कभी कभी वो लगता है कि सब ब्रह्म है, कौन दुख पा रहा है, कोई दुख नहीं पा रहा है। लेकिन कभी लगता है कि नहीं नहीं, संसार के लोग दुखी हैं और इसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो दोनों लेवल पे वो लोग जो महापुरुष है, जो रियलाइजेशन करते हैं, वो दोनों लेवल पे रह सकते जी जी। विदाउट द लिबरेशन ऑफ ऑल वन हैज नो लिबरेशन। ये भी सही है और वो भी ठीक है, दोनों का ठीक है महाराज। जी जी जी, ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। निवेदिता कहाँ गई निवेदिता? पहला प्रश्न है, what is the method of women education based on religion? Most of them, they do not want to pay attention to religion. In village also, many of them undergo marriages. So एक बड़ा उसको कैसे? भाई ऐसा है कि शारदा मठ ने ट्राई किया है, हाँ, और रनिंग स्कूल्स रन कर रहे हैं, उसने एजुकेशन को मिला दिया, उन्होंने रिलीजन को मिला के किया है। अब वो कैसे कर रहे हैं भाई, तुम्हें जानो, जाके देखो, पता लगाओ। ठीक है। सेकंड है, दूसरा प्रश्न है, हाउ द फाउंडर्स ऑफ गुड अंडरटेकिंग बिफोर दे लॉन्च देयर डिजायर्ड वर्क, मतलब लेक्चर देने के पहले, टू अटेन द नॉलेज ऑफ आत्मा थ्रू रिगरस डिसिप्लिन, इट इज सो रेयर टू सी। मतलब खुद पहले रियलाइज नहीं होके लेक्चर देना। ये स्वामी विवेकानंद के ठाकुर ने तो डायरेक्ट सबको ब्रह्मज्ञानी बना दिया था ना। हाँ। पहले थे दे बिकम स्पिरिचुअल जायंट्स, और उसके बाद में उन्होंने दूसरों की सेवा की। पर आजकल के युग में अखंडानंद जी, त्रिगुणातीतानंद जी, ये सब लोगों ने जो है पूरा खूब सेवा की। अखंडानंद जी ने तो कितनी सेवा की, लेकिन उसके पहले वो स्पिरिचुअल जायंट बन गए। तो भाई अब जब आज के जमाने में तो वो दोनों एक साथ होता नहीं, दोनों एक साथ करना पड़ता है। या रामकृष्ण मिशन में तो है ना कि हम लोग तो सेवा भी करते हैं और ट्रेनिंग भी प्राप्त करते हैं जी, तो दोनों करते रहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ भी करना पड़ता है, और सेवा जिसको कहते हैं उसको, सेवा को do try to convert it into service, into spiritual life practice. जी जी। क्या हुआ, तुम्हारा क्वेश्चन हुआ? जी महाराज। तीसरा जो प्रश्न ऑलरेडी हो गया है, जो यूनिक कह रहे, न्यू टाइप शिष्य को। फोर्थ है, हु इज रघुनंदन, जो एक वो संहिता, रघुनंदन संहिता ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, वही वो उन्होंने कोई संहिता या रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं उनके बारे में। जी जी। अच्छा, अभी जो पांचवा क्वेश्चन है, स्वामी जी सेज नेवर सीवियर, ये प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मुझे, सर, एन इंच फ्रॉम द आइडियल in eating and all these things, in enjoyment and disease, always manifest the highest. What does Swamiji means by that? ऐसा है कि जीवन में अगर जीवन व्यतीत करो तो उसमें खाना पीना भी है, सोना भी है, ये सब चीजें जो है वो संयत होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए।
अच्छा, हाँ, यानी मजा कर, ध्यान जब करोगे लेकिन बाकी चीजों में मजा करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, हाँ, केवल ध्यान जब भी करेंगे नहीं, सारा जीवन जो है तुम्हारा डिसिप्लिन और संयत होना चाहिए। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, यही बोल रहे हैं ना स्वामी जी। हाँ, 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 यानी डोंट बी, कपड़े पहनना है तो डैंडी ऐसे बड़े डिजाइन वाले कपड़े पहन हाँ, रहे हाँ, हैं, ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ, सिंगिंग, खाना, प्लेइंग, सिंगिंग, इसमें सब में जो है मैनलीनेस, हाँ, 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 यानी वो ढीला ढाला नहीं, मैनलीनेस सबके अंदर होनी चाहिए। हम्म। और लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। देयर इज ए क्लास ऑफ वेदांतीज हु सेज इंडिविजुअल लिबरेशन इज नॉट रियल बट हाँ, वही कलेक्टिव तो। लिबरेशन हो गया है। ठीक है, बस महाराज। अच्छा। दिलीप शाह, सतीश विक, सुबीर मजूमदार, निवेदिता, कुंडू, कोई बचा तो नहीं है? नहीं। इतु, देवाशीष, हो गया? कोई बचा के नहीं? हो गया कोई सब? नहीं। जी महाराज एक बंद सवाल करें? करूं मैं? महाराज हाँ, एक सवाल करो। करूं? हाँ, महाराज इस सवाल को करने से शायद मेरे को डांट पड़ेगी आपसे, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। हाँ कौन? हाँ, हाँ, ये जो न्यू टाइप स्वामी जी ने बताया अपने डिसाइपल को, हाँ। तो आपको लगता है कि हम जो इस जूम मीटिंग में आपके साथ है, वी कैन बी द न्यू टाइप ऑल्सो? हाँ, हाँ महाराज, हाँ महाराज, ये बराबर है, ये आप लोग करेक्ट जवाब है। दो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप लोग खुद जवाब दो उसका। ये महाराज बराबर है। आप तो हम सबको जानते हैं हमारे। हाँ, सुबीर बराबर कह रहे हैं। अरे महाराज बराबर हर उन्होंने हर आशीर्वाद भी संडे। दिया था कि आप बिल्कुल न्याय की जनता। महाराज उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि आपको कोई भय नहीं है, तो आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें कोई भय नहीं है। हमारी मुक्ति होगी। आज तो ये आप लोग मेरे को ही फंसा रहे हो बार बार। इससे पहले भी एक किया, अब किया, अभी भी एक किया। लेकिन ऐसा है ना, ये बात तो जरूरी है कि संडे के दिन हम लोग जब मिलते हैं और रेगुलरली मिल रहे हैं, 20-22 लोग रेगुलरली मिल रहे हैं, और ये प्रोग्राम बड़ा मजेदार चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये isn't it? हाँ, जी महाराज, जी महाराज। हाँ, चलने दीजिए ये सबके सब। मैंने एक वो सजेशन दिया है कि भाई ये मेंबर थोड़े बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यानी अपने फ्रेंड्स को, अगर जो आप चाहो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो अपने टेम्परामेंट का है, इसमें ज्वाइन कर सकता है, उनको आप लाने की कोशिश कीजिए। ये भी मैंने एक सजेशन दिया। ठीक, थैंक यू महाराज जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम हाँ महाराज। भाई।